علیکم، رائل نیوز کے ساتھ میں ہوں رافیہ یوسف۔ بلیٹنز کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کراچی کے علاقے محمود آباد کی، جہاں ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی رحمت اللہ شیخ نے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی رحمت اللہ شیخ نے محمود آباد میں چوراہے کا معائنہ کیا۔ معائنے کے دوران تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ چوراہوں، گرین بیلٹس اور سینٹرل آئی لینڈ کو درست کرنے کے لیے ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارکوں اور میدانوں کو تفریحی اور صحت مندانہ سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے۔ اس موقع پر انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ وہ جلد از جلد مذکورہ چوراہے کی تعمیر کو مکمل کرنے کے ساتھ ترقیاتی کاموں میں مزید اضافہ کریں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ رافیہ یوسف، رائل نیوز، کراچی۔ کراچی کے حوالے سے مزید بات کرتے چلیں کہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی رحمت اللہ شیخ نے ضلع شرقی میں ترقیاتی مسائل کے حل کے لیے سڑکوں کا معائنہ کیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی رحمت اللہ شیخ نے سچل گوٹ میں سڑکوں کی بہتری اور یوسی 12 میں نالے کی صفائی اور تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ بلدیاتی مسائل کو دور کرنے کے لیے دستیاب وسائل کے دائرے میں رہتے ہوئے کام سر انجام دے رہے ہیں۔ تعمیراتی کاموں کے معائنے کے دوران ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شکایات کے ازالے کو ممکن بنانے کے لیے محکمہ جات اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کیمرامین امیر قادری کے ساتھ رافیہ یوسف، رائل نیوز، کراچی۔ شہر قائد میں ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طاہا سلیم نے موٹر وہیکل ورکشاپ کا دورہ کیا اور سینیٹیشن کے زیر استعمال تمام گاڑیوں کی تفصیلات طلب کر لی۔ اس حوالے سے تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طاہا سلیم نے ڈائریکٹر سینیٹیشن اختر رضا کے ہمراہ ضلع وسطی میں تمام موٹر وہیکل ورکشاپس کا دورہ کیا اور سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر استعمال تمام گاڑیوں کی تفصیلات طلب کر لی اور نامکمل تفصیلات ملنے کے نتیجے میں انہوں نے تمام موٹر وہیکل انچارجز کو ہدایت کی کہ وہ 2 روز میں بلدیہ وسطی سینیٹیشن کے زیر استعمال گاڑیوں کے فزیکل ویریفیکیشن سمیت گاڑیوں میں استعمال ہونے والا ایندھن، پیٹرول، گیس اور ڈیزل کے ساتھ ساتھ سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈرائیورز اور کلی تک کی تفصیلات مہیا کریں۔ کیمرامین امیر قادری کے ساتھ رافیہ یوسف، رائل نیوز، کراچی۔ کراچی میں لیاقت آباد الیکٹرانک مارکیٹ کے اطراف تجاوزات کے خلاف ایکشن لے لیا گیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طاہا سلیم کی ہدایت پر کراچی لیاقت آباد الیکٹرانکس مارکیٹ کے اطراف تجاوزات کے خلاف ایکشن لے لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ثنا طارق نے مسلسل تجاوزات قائم کرنے پر لیاقت آباد نمبر 10 میں الیکٹرانکس مارکیٹ کو سیل کر دیا اور انہی کی سربراہی میں کارروائی کے دوران 35 سے زائد دکانوں کو سیل کر دیا گیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ثنا طارق کا کہنا تھا کہ تجاوزات کی وجہ سے ٹریفک کی روانی میں خلل پڑ رہا تھا۔ بار بار تنبیہ کے باوجود الیکٹرانکس مارکیٹ کے دکانداروں کی جانب سے تجاوزات قائم کرنے کا سلسلہ جاری تھا اور انہی کی سربراہی میں الیکٹرانک مارکیٹ کے اطراف بھی تجاوزات کے خلاف کارروائی کی گئی۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ رافیہ یوسف، رائل نیوز، کراچی۔ بھٹ شاہ میں پیپلز لیبر بیورو ڈویژن کے صدر خالد کمرانی کے زیر صدارت اجلاس منعقد کیا گیا، جس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ تفصیلات ہمارے بیورو چیف رانا عرفان کی رپورٹ میں۔ بلاول بھٹو کی کال پر 27 فروری 2022 کو کراچی سے اسلام آباد مارچ کے حوالے سے پیپلز لیبر بیورو ڈویژن کے زیر اہتمام خالد کمرانی کی زیر صدارت ریسٹ ہاؤس بھٹ شاہ میں ایک اہم اجلاس منعقد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی پیپلز لیبر بیورو سندھ کے جنرل سیکریٹری سید فیاض حسین شاہ، جبکہ دیگر اہم مہمانوں میں سید احسن شاہ، سید رضا شاہ اور سید حسنین رضا شاہ سمیت بڑی تعداد میں رہنماؤں اور کارکنوں نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ 27 فروری کا کراچی سے اسلام آباد لانگ مارچ حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ یہ مارچ ہر غریب، مزدور، کسان اور محنت کش کا مارچ ہے، جنہیں اس نااہل حکومت نے جہالت، غربت، مہنگائی اور بے روزگاری کے اندھیروں میں دھکیل دیا ہے۔ اگر حکومت نے اس پرامن مارچ کے شرکاء کو روکنے کی کوشش کی تو نتائج کی ذمہ دار خود حکومت ہوگی۔
ہوگی، کیونکہ یہ بڑھتے ہوئے قدم اب رکیں گے نہیں، منزل پر پہنچ کر ہی دم لیں گے۔ بھٹشاہ سے کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا محمد عرفان راجپوت، بیورو چیف رائل نیوز مٹیاری۔ خبر شامل کریں گے جھنگ سے، جہاں تیسرا سالانہ صوبے دار میجر منور شہید فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ اس ٹورنامنٹ میں پنجاب بھر سے 30 ٹیموں نے حصہ لیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں علی عباس کی رپورٹ پہ۔ جنگ میں جنگ سٹار ببرانہ فٹ بال کلب اور احتشام 11 فٹ بال کلب کے زیر اہتمام تیسرا سالانہ صوبے دار میجر منور شہید فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ ٹورنامنٹ میں پنجاب بھر سے 30 ٹیموں نے حصہ لیا۔ ٹورنامنٹ کے مہمان خصوصی مار فخر ببرانہ، حاجی ارشاد، عادل نواز خان، لالا پرویز، رانا ارشاد، رانا محمد سلیم، سجاد ببرانہ اور اشفاق انصاری سمیت شہریوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر مہمانان گرامی کا کہنا تھا کہ آج کے میچ کا مقصد نوجوانوں کو کھیل کی طرف راغب کرنا ہے۔ یہ ٹورنامنٹ اپنے لحاظ سے آل پاکستان ٹورنامنٹ جو ہو رہا ہے یہ بہت ہی بہترین طریقے سے آج اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ آج فائنل میچ ہے۔ اس میچ کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی کثیر تعداد یہاں موجود ہے۔ ہم ٹورنامنٹ کمیٹی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان کی محنت یہاں پہ واضح گراؤنڈ میں نظر آتی ہے اور اتنا اچھا ٹورنامنٹ کروانے پہ میں نے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کو ہوں کہ ہمارے کھیلوں کے میدان اسی طرح سجے رہیں اور ہسپتال ویران رہیں۔ ایسے ٹورنامنٹ ہونے چاہیے، ان سے علاوہ جو گراؤنڈ جو ہے نا وہ آباد ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہسپتال ہیں وہ ویران ہوتے ہیں۔ ٹورنامنٹ کے فائنل میچ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد ببرانہ فٹ بال کلب جنگ نے جنگ آزاد فٹ بال کلب کو ہرا کر جیت کا سہرا اپنے نام کیا۔ جیتنے والی ٹیموں میں نقد انعامات اور ٹرافیز تقسیم کی گئی۔ عباس، رائل نیوز جنگ۔ اب بات کرتے ہیں اسپین کے شہر بارسلونا کی، جہاں 13 رجب حضرت علی کا یوم ولادت انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات ممتاز سہوترا کی رپورٹ میں۔ اسپین کے شہر بارسلونا کی امام بارگاہ میں حضرت علی کا یوم ولادت نہایت عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ نظام کے فرائض سید ثبت الحسن نے ادا کیے۔ لنگرو نیاز سید عباس شاہ اور سید فہیم شاہ کی طرف سے تھا۔ سالار سید آسم علی کی طرف سے کیک پیش کیا گیا۔ اسپین بھر سے مومنین کی کثیر تعداد نے شرکت فرما کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ انتظامی امور سید اظہر عباس نقوی، سید ثبت الحسن، زوار شہباز اختر اور محمد زبیر چیمہ نے ادا کیے۔ جشن میں خصوصی تعاون چودھری فجر نواب چیمہ نے کیا۔ جو حدیث رسول ثقلین ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور یہی حدیث جو ہے یہ معتبر کرتی ہے جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور ہم سب پورے ورلڈ کو اپنی اس خوشیوں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انسان کیا جانے نبی جانے، سوچا ہے تیرا سجدہ پھر کدھر ہوتا، تو نے سوچا ہے تیرا سجدہ پھر کدھر ہوتا۔ بابا ابو طالب اپنے حرم کو نہ بیچتے حرم میں، تو پھر اسلام میں کعبہ ابو طالب کا گھر ہوتا۔ وہ علی رب نے جسے عرش سے بھیجی شمشیر، وہ علی جس کی زمانے میں نہیں کوئی نظیر، وہ علی جس کی نبیوں سے بڑھ کر توقیر۔ اپنی بات کا قبول منظور فرماوے، جڑے مومنین اس قسم کھا کے جائیں مالک دی ہر خواہش مالک اپنی بات کا پوری فرماوے۔ اب بات کریں گے ڈسکا کی، جہاں طلبہ و طالبات کی جانب سے ویلنٹائنز ڈے حیا ڈے کے طور پر منایا گیا۔ اس حوالے سے تفصیلات شاہد اقبال کی رپورٹ میں۔ ڈسکا میں ہزاروں طالبات نے مسکان کو بھرپور انداز میں خراج تحسین بھی پیش کیا۔ دنیا بھر میں ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے، تو وہیں ڈسکا کے طالبہ و طالبات نے اس دن کو حیا ڈے کے طور پر منایا۔ ڈسکا کے ایک نجی کالج میں ہزاروں طالبات نے مسکان کے حق میں نکل آئیں اور اس کے حق میں نعرے بھی لگائے۔ اس موقع پر فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔
तालबात ने कहा, हम मुसलमान हैं और हमारा वैलेंटाइन डे से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे लिए मुस्कान एक अमली नमूना है जिसे मुश्किल हालात में हिजाब पहनकर जुरायत का मुजाहरा किया। हम मुसलमान बेटियां दिल की अथाह गहराइयों से खराज तहसीन पेश करते हैं अपनी उस बेटी को जिसने दीन की सरबुलंदी के लिए हिंदू मुशरिक को ललकारा है। हम मुस्लिम बेटियां हैं, हिजाब हमारा हिफाजती हिसार है। कुफ्र और इस्लाम की जंग हो तो इस्लाम की तारीख में सैयदा उम्मे अमारा हैं। इसी जज्बा, इसी जुर्रत को आज जिंदा किया है इस्लाम की इस बेटी ने हिंदू मुशरिक को ललकार कर। अल्लाहु अकबर। इंतहा पसंद जत्थों के सामने बिनते इस्लाम का नारा तकबीर, जुर्रत और इस्तकामत का इस्तियारा ही नहीं, उम्मत के लिए नहज़त व क़याम की अमली दावत भी है। ये कली भी इस गुलस्ताने खज़ां मंजर में थी, ऐसी चिंगारी भी यार अपने खाकिस्तर में थी। सब मिलकर मेरे साथ नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। पाकपतन के हवाले से बताते चलें कि पाकपतन के गांव टवाना किला में रिहायशी फ़खर अब्बास और इनके अहले खाना को हमले और कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। इस हवाले से तफसीलात इस रिपोर्ट में। और पाकपतन में थाना चकबैदी के नवाही इलाका टवाना कला के रहायशी फ़खर अब्बास और इनके अहले खाना को कत्ल जैसी संगीन धमकियां दी जा रही हैं, जिस पर अहले इलाका और वर्षा का शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि कानूनी तौर पर हमारे पास दस्तावेजात होने के बावजूद मुखालिफिन हमें नाजायज तौर पर हरासा कर रहे हैं। जी मेरा नाम जी फ़खर अब्बास है। मैं खुली अदालत जियां उत्थे एसी साहब भी तहसीलदार साहब भी सारे ने मेरे नाल जनाब मैंने हुक्मनामा दिते भी पटवारी को जाओ, पटवारी को ना तस्दीक करा लो। पटवारी की तस्दीक तक गया तो मेरे पीछे पीछे गए। पटवार खाने के टाइम गया जी तो उत्थे ना मेरे ते हमला कर दिते जे बेटे ये आप दकिया ने इंदे उत्थे हमारे बच्चे कॉलेज जाने से भी महरूम हैं। हम घर तक मासूर होने पर मजबूर हैं और मुतअद्दिद मर्तबा 15 पर कॉल की मगर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। मुजाहिरीन ने IG पंजाब, RPO साहिवाल और DPO पाकपतन से मुतालबा किया कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मुल्ज़िमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी मेरा नाम रब नवाज है। टवाना कलाम में मैं रैश पजीर हूँ। अब तो मेरे नवासों का यह मामला है, बेजा मदाखलत कर रहे हैं, बेजा हमारे पास सब रिकॉर्ड मौजूद है। इस हिसाब तक सब बिल्कुल हमारे हक में रिपोर्ट आई है। बेजा मदाखलत करके सियासी दबाव देकर हमें परेशान और हमारे हमला भी इन्होंने किया है। वो आज तक 1 तारीख को आज तक FIR या पर्चा नहीं दिया गया। हम बार बार गए हैं, बार बार लोग छुप कर गए हैं। हमें डर है कि हमें ख़तरा है इन लोगों से, फिर ये कोई कार्रवाई न कर दें। रुख करते ही मुजफ्फरगढ़ का, जहां थाना खानगढ़ पुलिस ने चोरी की बकरियां और चोरी की वारदात में इस्तेमाल की जाने वाली कार बरामद कर ली है। इस हवाले से तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ के थाना खानगढ़ पुलिस ने चोरी होने वाली 12 अदद बकरियां और चोरी की वारदात में इस्तेमाल होने वाली कार बरामद कर ली। मौजा रकनवाली में चोरों ने नकब लगाकर भाना से 12 अदद बकरियां चोरी की और कार में लोड करके रोहेला नवाली से सनानोआ की जानिब रुख किया। गश्त करने वाली थाना खानगढ़ की टीम को शक हुआ तो कार का पुलिस टीम ने ताकुब किया और पूरी 12 बकरियों समेत गाड़ी को अपनी तहवील में ले लिया। DSP सदर सर्कल रिजवान खान और SHO थाना खानगढ़ महिउद्दीन ने 3 लाख वालियत की चोरी शुदा बकरियां मालकान के हवाले की तो बकरियों के मालकान ने पुलिस टीम को फूलों के हार पहनाकर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। DSP सदर सर्कल ने कार समेत बकरियां बरामद करने पर पुलिस टीम की काविशों को सराहा और कहा कि पुलिस रात को जागती है तो आवाम चैन से सोती है। पुलिस की मुअस्सर गश्त का नतीजा है कि चोरी शुदा बकरियां फिलफौर बरामद कर ली गई। सक्कर के हवाले से देते चले एक अहम खबर, जहां मशहूर और मारूफ लेडी डॉक्टर शबाना सोलंकी की जानिब से गरीब खवातीन के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया है। इस मेडिकल कैंप में खवातीन को मुफ्त तिबी इलाज दिया जा रहा है। इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे फैसल आराई। चीफ फैसल आराई, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ सक्खर के मशहूर व मारूफ ज़ायान मेडिकल सेंटर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर सक्खर की मशहूर व मारूफ लेडी सर्जन है
डॉक्टर शबाना सोलंकी की जानिब से यहाँ पर गरीब और नादार अफराद के लिए जो गरीब और हैं और महंगी अद्वियात तक जो उनकी पहुँच नहीं है, महंगे हॉस्पिटल्स में जो वो चेकअप नहीं करवा सकते, उनके लिए एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। यहाँ पर देहात से, गाँव से ताल्लुक़ रखने वाली गरीब और नादार ख़वातीन की बड़ी तादाद है जो वो चेकअप करा रही है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा किन किन बीमारियों का यहाँ पर जो है वो इलाज और आप चेकअप कर रही हैं, और क्या दवाएँ और टेस्ट वो भी फ्री हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ पे आए। यहाँ पे हमारे पास जो इंटीरियर से और हमारे सक्खर शहर से जो भी गरीब पेशेंट्स हैं, मैं असल में हिरा हॉस्पिटल में बैठती हूँ काफ़ी सालों से। यहाँ पे मैंने अपना सेटअप किया है गरीब पेशेंट्स के लिए। तो आज हमने एक दिन का फ्री मेडिकल कैंप लगाया है। उसमें हम आयरन के इंजेक्शंस भी, जिनको खून की कमी है, खून की कमी का टेस्ट भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेबॉर्ट्री टेस्ट, और उसके अलावा इंजेक्शंस दे रहे हैं, मेडिसिन्स दे रहे हैं, मल्टी वाइटामिन्स दे रहे हैं पेशेंट्स को, और फ्री में चेकअप भी हो रहा है, और अल्ट्रासाउंड भी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। ये तो एक इनिशिएटिव फर्स्ट डे है आज मेरे हॉस्पिटल का। अल्लाह मियाँ इसमें बरकत देगा इंशाल्लाह, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं हर महीने ऐसा कैंप करूँ यहाँ पे। और उसके अलावा मेरा ये है कि साल में 3 दफ़ा मैं सर्जिकल कैंप भी लगाऊंगी यहाँ पे, जो कि पेशेंट्स के फ्री में ऑपरेशंस होंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, खुशनुदी मखलूक खुदा की खिदमत से ही है वो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल की जाती है। इसी पर अमल पैरा होकर है डॉक्टर शबाना सोलंकी, जो कि एक सक्खर के महंगे तरीन हॉस्पिटल्स में जो है वहाँ पर अपने फ़राइज़ अंजाम देती हैं, लेकिन इसको मद्देनज़र रखते हुए गरीब और नादार ख़वातीन के लिए आज अपने मेडिकल सेंटर पर जो वो फ्री मेडिकल कैंप लगाया, और यही अज़म रखती है कि इस तरह के फ्री मेडिकल कैंप का सिलसिला जारी रहेगा। जी, खबरों के सिलसिले को मजीद बढ़ाते हुए बात करते हैं जहलम की, जहां मूटा शर्की में पंजाब का कदीम सकाफती खेल अखाड़ा बेल मेला सजा दिया गया। इस हवाले से तफसीलात फरहान शाह की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त जहलम के मुकाम पर हम मौजूद है मूटा शर्की में। आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे अखाड़ा बैल का एक जो मैचेस है उनका इनका किया गया यहाँ पे, और यहाँ पे मेहमान खसूसी जो है IG मोटरवे पुलिस जफर अब्बास लक साहब ने जो खसूसी शिरकत की है, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं इस अखाड़े के बारे में कि क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जी बड़ा मुबारकबाद दूंगा इस पूरे इलाके के लोगों को कि बड़ा माशाल्लाह पीसफुल हैं, इत्तेफाक से बैठे हैं, और बड़ा अच्छा इनका आपस में सलूक और रवादारी और भाईचारा है, क्योंकि ऐसे मौक़ों पे आपको पता है पंजाब में काफ़ी झगड़े हो जाते हैं। और दूसरा ये बड़ा एक हेल्दी स्पोर्ट्स है कि इसी वजह से बैलों की अफजाइश हो रही है, बैल जो है वो रखे जा रहे हैं, अदरवाइज़ तो पूरे पंजाब में ये ख़त्म हो गए हैं, ये अटक में, चकवाल में। और बता देता हूँ मुंतज़मीन को, भट्टी साहब हैं, MP साहब हैं, चौधरी खादम साहब और चौधरी मुशाक साहब, हमारे ये बड़े अच्छे बुजुर्ग थे जो कि जिनका ये इलाका है, बड़ी खुशी हुई है, उनके बेटे हैं हमारे साथ, हमने मिल के काम किया है पंजाब पुलिस में। इतनी दुनिया आई है साढ़े मेला तकन, असी बुजुर्गों के नाम का मेला कराने, बुजुर्ग साढ़े शुरू की दाना का शौक रखते सन, मेला कराते सन। जितनी बच्चा पार्टी साड़ी आई है, यंग जनरेशन है, सारी UK की आमदी है इस मेले। ये हमारे आबाओ अजदाद की विरासत है। अल्लाह बख्शे हमारे कंत्रीली का अखाड़ा, मैं अभी पैदा नहीं हुआ था, मैं अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 73-74 साल का हूँ, तो मेरे पैदा होने से पहले कंत्रीली का अखाड़ा जो है वो शुरू है, हमारे बड़कों ने शुरू किया। अखाड़े बानी जो है उन्होंने ऐलान किया कि ये हमारा अखाड़ा सदियों से चल रहा है और इंशाल्लाह ये चलता रहेगा, ये अवाम की सोच है। और बानी अखाड़ा ने कहा है कि हर साल इंशाल्लाह हम अवाम को सोचते देंगे। ये अवाम जब यहाँ आती है तो उनकी टेंशन खत्म। अखाड़ा बैल एक कदीमी और सकाफती खेल है जिसको पंजाब में रवायती जोशो खरोश और जज्बे से देखा और खेला जाता है। यही वजह है कि जेहलम में इसको देखने के लिए मुल्क भर से लेकर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तवज्जो का मरकज है। कर के हवाले से बताते चले, थाना कर की हुदूद में कुरान पाक को नजरे आतिश कर दिया गया। इस अफसोसनाक वाक़ये पर बरवक्त कार्रवाई के जरिए मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात जानते हैं सफदर नजीर शाकिर की रिपोर्ट में। फैसलाबाद की तहसील तांदलावाला में थाना कोर के इलाका मौजा डुडेरा में दिल खराश वाक़या पेश आया है। एक शख्स जिसका नाम जाकिर वल्द नूर कौम कुरैशी है, जो अपने आप को इमाम मेहदी 12वां इमाम बताता है और कहता है कि मैंने सुन्नियों के कुरान को जलाया है और आग लगाई है। आग लगाने से काफ़ी और आग शहीद हो गए हैं। गांव वालों ने आग बुझाई और 1 5 पर कॉल की।
थाना कोर पुलिस अमरा DSP इमरान अब्बास चद्दड़ SHO अमजद नज़ीर मौका पर पहुंचे और मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ बाजुर्म 295B 298B के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। अहले इलाका में मुलजिम को सरेआम फांसी देने का मुतालबा भी किया है। कैमरा टीम चौधरी अनीस के साथ सफदर नज़ीर शाकिर, फैसलाबाद। बात करते हैं मुरीद की जहां गवर्नमेंट गर्ल्स एंड बॉयज प्राइमरी स्कूल इंतहाई नाकिस हालत का शिकार है। बच्चे गंदे तालाब के पास तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मियां कर्म इलाही जी। ये है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रखफोली फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। बुनियादी सहूलियात से महरूम, ना फर्नीचर, ना चारदीवारी, ना वाशरूम। पंजाब हुकूमत और ज़िली इंतज़ामिया की अदम तवज्जो का शिकार स्कूल में 292 बच्चे ज़ेरे तलीम हैं जो बुनियादी सहूलियात और ज़रूरियात से महरूम हैं। CEO एजुकेशन शफकत हबीब मकामी होने के बावजूद हालात से नावाकफ़ बच्चे टाट की बजाय तालाब के किनारे तलीम हासिल करने लगे। अहले इलाका ने आला इंतज़ामी इदारों से स्कूल के बेहतर हालात करने की अपील कर दी। कैमरामैन अकबर अली के साथ मियां करमलाई, रॉयल न्यूज़ रखफोली मुरीद के। खानेवाल की तहसील मियां चन्नू के थाना सदर की हुदूद का रिहायशी क्रिश्चियन जोड़ा अपनी बेटी के अगवा पर प्रेस क्लब खानेवाल पहुंच गया। तफसील शेख सुहेल की रिपोर्ट में। जिला खानेवाल की तहसील मियां चन्नू के थाना सदर की हदूद चक नंबर 133 सोलाल के रहायशी क्रिश्चियन मियां बीवी अपनी बेटी की अगवा के सताए हुए डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल पहुंच गए। मियां बीवी ने इल्ज़ाम लगाया कि हमारी बेटी हुरब जावेद को 17/1/2022 को 62 पड़ोसियों ने मुबैना तौर पर अगवा कर लिया। अगवाकारों में शहाना, यूनस, दाऊद, शबाना, याकूब वगैरह ने अगवा किया है। बच्ची के वालिद ने मुबैना तौर पर अगवाकारों के खिलाफ थाना सदर में दरख्वास्त दी तो अगवाकारों के खिलाफ FIR का इंदराज हो गया। मेरी बेटी हुरब जावेद जो कि 17 तारीख को गवाह हुई, शाना, यकूब, यूनस और शकीला और दाऊद और रियाज और उसकी रियाज की बीवी शबाना लोगों ने गवाह की और उसके बाद हमारी FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस वालों ने उनके साथ बात करके दफ़ा 64 के बयान दिलवा कर हमारी FIR खारिज करवाई। उसकी पुष्ट बनाई चौधरी मिठू जित्ता साहब कर रहे हैं और हमारा कोई भी हमारी DPO SSP ने हमारी पेशी पे सही मुनासब बेफाम और निकाहनामे के तहत बेटी की उम्र दर्ज की और उसके बाद अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई की नहीं जा रही। हमारा DPO खानेवाल से ये मुतालबा है कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। और मुल्ज़मान ने हमारी शादी से 1 साल पहले का पैदाइश का जाली बेफाम बनाया हुआ है। बेटी को मुल्ज़मान की जानिब से जान का खतरा है और हमें कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। बच्ची के वालिदा ने DPO खानेवाल से मुतालबा किया है कि हमें फौरी तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया जाए और मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरामैन टीम के साथ शेख सुहेल, नुमाइंदा रॉयल न्यूज़ खानेवाल। बात करेंगे हरीपुर की, जहां अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के बहार सेमेस्टर के मौके पर रीजनल डायरेक्टर शाहिद अली खान की हरीपुर आमद। इस हवाले से तफसीलात फैयाज खान की रिपोर्ट में। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स और ऑनलाइन सिस्टम के हवाले से भी प्रॉब्लम्स हैं, तो और साथ में ये भी आप बताएं कि जो इस बार आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या को मार्च से जो स्टार्ट हो रहे हैं तो उसके हवाले से कितने आपने सेंटर कायम किए? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात तो ये है कि जो ऑनलाइन सिस्टम हमारा है वो एक तलबा के फ़ायदे के लिए है। लेकिन पहले एक स्टूडेंट को काफ़ी तकदो करना पड़ता था, अब घर बैठे आप एडमिशन कर सकते हैं। पहले लाइन नहीं लगती थी, स्टूडेंट लास्ट में आ जाते थे, लास्ट डेट पे, फिर सिस्टम बैठ जाता था, इवन सब उसको नहीं कर सकते। बट अब आप घर बैठे ईजीली जो भी आपका प्रोग्राम होता है उसमें अप्लाई करते हैं और आराम से आप उस पर आपका फीस सबमिट कर लेते हैं। इसके अलावा जो आपकी असाइनमेंट भी ऑनलाइन हो गई है, असाइनमेंट भी आप इजीली आप वहाँ पे सबमिट कर लेते हैं और इजीली उसको चेक करके आपकी मार्किंग कर लेते हैं। इसके साथ साथ आपके वर्कशॉप हैं, वर्कशॉप जैसा कि आपको पता है हमने काफ़ी 2 सेमेस्टर पहले से उसको ऑनलाइन किया हुआ है। आप अपने कोशिश ये करें असाइनमेंट के लिए कि आप इंटरनेट की फैसिलिटी हो, ये थोड़ा सा नेट इसके लिए आपको चाहिए होता है। बाज़ मोबाइलों में जिसकी उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती, दैट्स वाई आपको ऑनलाइन इशू आ रहा होता है। तो आपसे ये सजेशन है कि आप अगर वहाँ पे नहीं ऑनलाइन उस पा रहे तो आप ऐसी एरिया पे जाए जहाँ पे नेट की अवेलेबिलिटी हो। सेकेंडली, आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे आप बैठ के उस पर ईजिली आप उसको अटेंड कर सकते हैं।
और जो तलबा हमारे रीजन ऑफिस के करीब है, इतने डिस्टेंस में नहीं है, हमारे पास वहाँ पे IT लैब है, इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है, आप हमारे पास हैं, इंशाल्लाह हम आपको वहाँ पे हेल्प आउट करेंगे। सर बात करते हैं भक्कर की। भक्कर के निजी कॉलेज में पोजीशन होल्डर्स और नए आने वाले तलबा के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात सैफुर रहमान की रिपोर्ट में। आज की खूबसूरत तकरीब बोर्ड और यूनिवर्सिटी में पोजीशन होल्डर तलबा और तालबात और नए आने वाले स्टूडेंट्स के खैर मकदम के लिए मुनाकिद की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा के 16 तलबा ने मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हासिल किया है, जो कि किसी भी प्राइवेट इदारे का रिकॉर्ड है। ये बात मलिक सरवर नवाज कुहावड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा। कहना था जिसमें हमने अपने न्यू आने वाले स्टूडेंट्स को वेलकम कहा और वो बच्चे जिन्होंने बोर्ड लेवल पे पोजीशंस ली और यूनिवर्सिटी लेवल पे पोजीशंस ली, उनकी अप्रिसिएशन के लिए थी, उनके लिए अवार्ड सेरेमनी का हमने एक इनेकाद किया आज। हमारे बच्चे हमारा प्राउड हैं, हमारा फ़ख्र हैं कि जिन्होंने भक्कर का, हमारा अपने साथीज़ा भक्कर का नाम जो है वो पूरे पाकिस्तान में रोशन किया अल्हम्दुलिल्लाह। अपने रिज़ल्ट की बेस पे, अपनी नॉर्म्स की बेस पे इस वक्त पोजीशन रखता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम रिज़ल्ट्स की बुनियाद पे अगर हम देखें तो हम सरगोदा डिवीज़न में नंबर 1 पे हैं। कि हमारे तलबा हमारा फ़ख्र हैं और हम अपनी कामयाब रवायत का सफ़र जारी रखेंगे। तकरीब में MNA डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला, MPA आमिर इनायत खान शाहानी, साबिक तहसील नाजिम मलिक अमजद अली कुहावड़, राना मोहम्मद अरशद बिस्मिल्लाह बिल्डर्स, मलिक नजर अब्बास कुहावड़ समेत समाजी शख्सियात और तलबा के वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए MNA डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला और आमिर इनायत खान शाहानी का कहना था, जनाब सरवर नवाज ख्वावड़ साहब की सरबराही में ये इदारा थल की धरती के बच्चों को बहुत ही ग्रां नुमाया खिदमात मुहैया कर रहा है और तालीम के शोबे में ये जो हमारी बखर की तरक्की है और ये जो हमारे बच्चे पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में पोजीशंस ले रहे हैं, उसमें इस इदारे का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इंशाल्लाह इनमें इतना पोटेंशियल है कि ये बखर का जो मुस्तकबिल है वो इनके हाथों में है और इंशाल्लाह वो ताबनाक देख रहा हूँ। पोजीशन होल्डर तलबा के एजाज में ऐसी तकरीब का इनेकाद खुश आइंद है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर बच्चों ने इलाकाई रक्स करके समा बांध दिया। साथी कैमरामैन के साथ सैफुर रहमान, TV टुडे, भक्कर। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं मजीद कुछ खबरों के साथ। देखते रहिए रॉयल न्यूज़।